प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Welcome. So I wanted to, Bhumika ji, I wanted to introduce you to other members in this group. We have Deepak ji and family, Kalpana Mata ji, Correct. Hare who are also founder patrons, who have taken a Krishnamurti villa. Bhumika ji is our founder patron again. She is associated with us since almost 6-7 years now. They are also taken a villa in Madhavkuti. Okay. So they are from Punjab, family from Punjab. And Deepak ji family is from Middle East, Bahrain. They are staying in Bahrain, but originally from Ujjain. Madhya Pradesh. Yes, Ujjain. Okay. And this is Sachin and family. Sachin is doing services in temple with me. And Mataji, Shubhi Mataji is a chartered accountant by profession. They have 2 small kids. 2 years, 6 3 years and 6 months. 2 years and 6 months. Okay. Okay, fine. And Bhumika ji has twins. She has twins. Children are in 6th standard. Bhumika ji 6th में है अभी. Yes प्रभु जी 6 में. 6th में है. A very good family known to us, and they have been very supportive in our Punjab preaching, and many wonderful things are going to happen in Punjab going forward. Let's see. Anyway, Deepak ji has one son working in multinational company, MNC, right? Deepak ji? Yes. Good. So let's, this is a session wherein we are meeting together and preparing for Diksha. ठीक है? So Bhumika ji, आपका कहाँ तक हुआ है अभी? प्रभु जी, I am also preparing for Charanashriya. Right now. चरणाश्रय. Anyway, इनका चरणाश्रय हो गया है अभी recently. Okay. Okay. Anyway, no problem, because all these topics are all connected for Diksha also. Meanwhile, Charanashraya हुआ, next Diksha का तैयारी चल रहा है, and we have just begun our sessions. अभी गौर पूर्णिमा के बाद ये second session है हमारा. तो good, you have joined. So it'll, Welcome Mataji. Thank you प्रभु जी जी. हरे Thank you. कृष्ण माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्णा. So दीक्षा के लिए हमें 3 बुक पढ़ना है. कौन से हैं सचिन? जी, one is the Bhagavad Gita. हाँ. Second is the Nectar of Instruction. हाँ. Right. Third is Ishopanishad. Third is Ishopanishad. Getting a prompt behind. Collective efforts we are getting. Very good. एग्जाम तो अकेला लिखना है. अभी याद हो गया ना जी. अभी याद हो गया ना. एग्जाम में जो हेल्प होती है ना वो हमेशा याद रहती है. ठीक है. So we have just begun studying Nectar of Instruction. गीता तो पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं कि बीच में हो गया. बस एक बार हो गया ऐसा नहीं, पढ़ते रहना है. Anyway, that we'll again go back to Gita. We have begun Nectar of Instruction. Last session we discussed on first 2 verses. Nectar of Instruction is a book written by Rupa Goswami. Book दिखता नहीं है यहाँ. Anyway, ठीक है. Written by Rupa Goswami. It's a very small book having 11 verses. 11 श्लोक है बस. और ये पूरा हमारे भक्ति आचरण के लिए very important instructions which all of us have to follow strictly, seriously. So this begins with Rupa Goswami pointing out. Rupa Goswami बताते हैं शुरुआत में कि शरीर में 6 तरीके के वेग हैं जो हमें कंट्रोल करना है. तो कल्पना माता जी, ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? 6 वेगों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते प्रभु जी. जहाँ है वहीं रहेंगे. तो हम गोदास बन जाएंगे ना. यस प्रभु जी. तो यही बोलते हैं ना, गोस्वामी नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे? गोदास है, यानी कि गोदास का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? जो हमारा
मतलब जो हमारी इंद्रियां जैसे हमको चलाती है वैसे चलते हैं, जो इंद्रियों को हम नहीं चलाते, इंद्रिय हमें चलाते हैं। इंद्रियां हमें चलाती है इसको। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। हाँ, कार आपको लेके चलना है, जैसे आप चाहते हैं ऐसे लेके चलना है कार। ऐसे नहीं, कार का जो है ब्रेक फेलियर हो गया, कार जहाँ लेके जाएगा आप जाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होगा, आप बचेंगे क्या होगा पता नहीं। यस प्रभु। तो गोदास नहीं बनना है, गोस्वामी बनना है, ये इंस्ट्रक्शन है पहले श्लोक से। वेरी इंपॉर्टेंट। वेग तो है, हाँ, वेग जो जो अर्जस तो है हमारे हमारे शरीर में, बस अर्जस को कंट्रोल करके ठीक से भक्ति में यूज करना है, ये बता रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट सेकेंड श्लोका में रूप गोस्वामी हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हमारे भीतर कुछ दोष हैं, 6 तरीके के दोष भर गए हैं। क्यों? क्योंकि हम भौतिक संसार के एसोसिएशन में आ गए हैं, तो इतने सारे दोष भर गए हैं। मुख्यतः जो है रूप गोस्वामी इसको 6 वेराइटीज में कैटेगराइज करते हैं। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्य, ये 6 तरीके के दोष हैं। तो ये दोष हमें कितने तरीके, ये दोषों को कितना हम सुधरेंगे और इससे बाहर निकलेंगे, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, बता रहे हैं। दोष के बीचों बीच रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस तरीके से रूप गोस्वामी बताते हैं। वी डिस्कस्ड इट इलैबोरेटली, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स कवर 2 more verses today because I don't want to delay. ठीक है, तो वर्स नंबर 3, होपफुली आप सब स्टडी किया है, हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स कुछ लेके डिस्कस करेंगे हम। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम एक एक पॉइंट लेके, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसके लिए उसका डिस्कस करेंगे हम बस, ठीक है। तो थर्ड श्लोका में रूप गोस्वामी सेलिंग 6 और अच्छे गुण हैं जो हमें भक्ति में उसको यूज करने से हमारा भक्ति वृद्धि होगा। शद्भिर भक्तिर प्रसिद्ध्यति, हम भक्ति में एडवांस हो सकते हैं जब हम ये 6 तरीके के जो लक्षण हैं, गुण हैं, उसको अडॉप्ट करेंगे, यूज करेंगे। कौन से है? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, संगत्यागा शतो वृत्ति है, षड्वीर भक्तिर प्रसिद्ध्यति। तो 6 तरीके के जो लक्षण है, क्या है? उत्साह, एंथुसियाज्म, साह, निश्चय और कॉन्फिडेंस, धैर्य, पेशेंस, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, इसका अनुसरण करना, अलग अलग तरीके के जो नियमों का अनुसरण करना, संगत त्यागा, संगत त्यागा यानी कि हमें अभक्तों का संग त्याग करना है। सतो वृत्ति ही, हमें हमारे जो पूर्वाचार्यों का मार्ग पर चलना है। देखिए सभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट श्लोका, सेकंड श्लोका, थर्ड श्लोका, ये सभी कुछ बाहर दिखते नहीं है, हमारा अंदर में हमारा एक्टिविटी है, इंटरनल एक्टिविटी है। अंदर का जो है हमें हमारा जो कार्यक्रम होना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें समझना है, ठीक है। तो ये उत्साह, व्हाट इज उत्साह? दीपक जी, उत्साह, व्हाट इज उत्साह? enthusiasm. Utsaha means Prabhuji, to achieve any success or to achieve any goal, one has to like have passion to follow that goal. So it's not that means anything like if you want to become artist or you want to become painter or whatever. Utsaha means what? Just simple question I'm asking. Utsaha means what? इसलिए मैं बोलूंगा ना, मैंगो मीन्स, मैंगो इज ए फ्रूट। Excite. समझ रहे हैं? मैंगो इज ए फ्रूट एंड इट इज वेरी टेस्टी
is king of fruits. Further description is different matter. First, Hmm. simple definition. Utsaha means क्या? What is उत्साह? इट्स अ प्लेजर प्रभु जी, आनंद, हाँ? प्लेजर जिसको बोल सकते हैं, मतलब Pleasure. हाँ, Pleasure. इंटरेस्ट बोल सकते हैं जैसे, मतलब आप Interest. हाँ, ठीक है. Good. इनकरेजमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे मतलब Encouragement देख के बोलते आप इनकरेज होते हो, मतलब Encouragement होता है, ठीक है. हाँ. Sachin, over to you. Define enthusiasm. उत्साह. The literally meaning, translation is enthusiasm. It is furtherly can be defined as the positive and active attitude of Okay, doing active it. attitude. Very good. So Okay. this is how the post Cambridge wala definition. No problem. But generally what लोग जब enthusiasm बोलते हैं, उत्साह बोलते हैं, जैसे आज दोपहर में मैं बोलूंगा सबको, आप सब मेरे घर पे आए हैं, आज बड़ा फीस्ट होगा. हाँ प्रभु जी, enthusiasm बेसिकली मतलब जब उत्साह की बात होती है तो इसमें इट इज रूटेड फ्रॉम समथिंग वी आर मतलब पैशनेट अबाउट, या हमें बहुत ज्यादा पसंद है वो चीज, वहां से शुरू होता है. और उस काम को जब हम करते हैं तो अति प्रसन्नता होती है, थकान तक महसूस नहीं होती है. यानी कि पूरा जोश होता है. जी जी. जोश होता है ना, कल्पना हाँ. मत. जोश. Yes. enthusiasm मीन्स करना है, जाना है, भागना है. क्यों भागना है, करना है. Why? Because why you have to run? क्योंकि क्योंकि आपका हम माइंड में एक गोल फिक्स है. हाँ. देखिए ये सभी पॉइंट्स है ना, ये फिलोसॉफिकल है, हमें अपना कॉमन सेंस में अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है. सिंपल है, ठीक है ना. तो प्रभुपाद समझाते हैं एंथुसियाज्म मींस एक्टिविटी. अरे अभी कभी बोलते हैं ना, मैं मेरे बेटे को बोल रहा हूं पढ़ने के लिए, एंथुसियाज्म नहीं है, उत्साह नहीं है. हाँ, क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कि पढ़ाई करने से क्या होगा, आगे कैसे आगे बढ़ना, क्या वो पता ही नहीं उसको. सो जैसे ओके, एक बड़ा मॉल में ऑफर लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो उसका से 10,000 रुपए, आज का दिन 10,000 रुपए है. तो पूरा जो उस लोकेलिटी का उत्साह से बढ़ेंगे ना खरीदने के लिए. जी. हाँ, समझ रहे हैं उद्दीपक जी? हाँ, वो ग्रीड हो जाएगी प्रभु जी, वो तो उत्साह के साथ में ग्रीड भी ग्रीड अलग बात है. ग्रीड है आपको जरूरत से ज्यादा लेना, वो तो उसके बारे में हमने समझा हुआ है सेकंड. लवलिया, लवलिया यानी कि आपकी जरूरत से ज्यादा लेना, मोर देन नेसेसरी यू आर टेकिंग थिंग्स व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड. एक्साइटमेंट आ जाता है, हाँ, एक्साइटमेंट जिसको एक्साइटमेंट, एग्जैक्टली एक्साइटमेंट. और उसे करने का जो है जोश, हिंदी में बोलेंगे तो करना है, मुझे करना है ना. तो यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे आर. ये उत्साह हमें ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में, है ना. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनरली अ पर्सन मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी चीज उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए आ रहा है, आने वाला है, तो उसको बहुत उत्साह होता है, करना है, क्योंकि उसको उससे बहुत सारी चीजें उसके माइंड में एक तरीके का एक्साइटमेंट होता है, बहुत सारा जो उसको अच्छा लगता है, आनंद आता है. खाली जो है मुझे 10 दिन बाद मुझे घूमना जाना है, एक ट्रिप जाना है, एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है. This excitement can be negative also. This excitement can be for negative things also. Negative also. Yes, anything. I'm telling, it can be any object, any person, any activity. It can be for say a situation. So like the druggist is enthusiastic for drugs. A druggist, AAP can is driven. Enthusiasm. और ड्रग्स का नाम सुनते ही उसको शुरू हो जाता है केमिकल्स, उसको उत्साह बढ़ जाता है. वो जी मैनेजमेंट लैंग्वेज में मतलब जो हम लोग टर्म्स यूज करते हैं, तो मतलब इट्स अबाउट द डिजायर्ड गोल. मतलब जो डिजायर्ड गोल होता है उसके प्रति आपके प्रति ज्यादा पैशन होता है. वो पैशन इज ए लाइक ए व्हीकल, दैट and the byproduct is enthusiasm. Exactly. मतलब
क्योंकि आप Enthusiasm गोल की कुछ नहीं तरफ होगा। इंतजाम से बढ़ते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जो काम कर रहे हैं, हाँ हाँ कंपनी का एक गोल होता है ना, जी जी तो उस गोल का जो है आपको अचीव करना, डे बाय डे आप प्रोग्रेस देख रहे हैं। जब तक आप में उत्साह नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई बात ही नहीं है। बात ही नहीं, बिल्कुल समझ रहे हैं ना? तो उत्साह बेसिकली मीन्स एनी एक्टिविटी विच इज ड्राइविंग टुवर्ड्स अ गोल, है ना? इट इज मेकिंग यू वर्क एवरी डे, मीन्स दैट गोल इज ड्राइविंग यू बिहाइंड। बिल्कुल करना है, अचीव करना है। जैसे एक स्टूडेंट, हाँ, उसका एग्जाम होगा से 6 महीने के बाद, फिर भी उसे पता है कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है। उत्साह है ना कि हर दिन उसे 3-4 घंटा पढ़ना है, उठना है, सिस्टमेटिक डिसिप्लिन वे करना है। उत्साह बोलते हैं उसको। वो संडे हो, हाँ, वो हॉलीडे हो, हाँ, आईपीएल मैच आते रहो, फिर भी मैं पढ़ूंगा, इसको बोलते हैं उत्साह। हाँ, तो भूमि कह, आई वांट यू टू पार्टिसिपेट आल्सो। हरे Yes, कृष्णा। Prabhuji, I'm listening actively. लिसनिंग ना, फाइन। तो वी Yes. डिफाइनिंग उत्साह। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि यू हैव टू हैव उत्साह इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा कॉन्शियस में उत्साह क्यों होना है? हाँ, शुभी माता जी बोलिए, क्यों चाहिए उत्साह कृष्णा कॉन्शियसनेस में? यस प्रभु जी, अगर उत्साह नहीं होगा तो फिर हम हाँ? उत्साह चाहिए प्रभु जी, क्योंकि अगर उत्साह नहीं होगा तो हम अपने काम और दूसरे कामों में उलझे रहेंगे, और हम हाँ, सोचते रहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है कृष्णा के लिए। हाँ। तो अगर उत्साह के साथ नहीं करेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, तो मुझे अपने रूल्स को फॉलो। उत्साह से नहीं करेंगे तो क्या होगा? हर दिन जपा करना है, यस प्रभु उत्साह जी, से करना है। हर उत्साह दिन से। भोग लगाना है, उत्साह से करना है। यस हाँ, प्रभु जी। हर दिन सुबह मंगलारती में उठना, उत्साह से उठना है। उत्साह नहीं होगा तो चलो आज भोग नहीं लगाएंगे, आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, नो नो इंटरेस्ट, आज जप करने का मन टास्क नहीं बन लग जाएगा एक सिर्फ, रहा है। हाँ, हाँ, वो एक जॉब बन जाएगी, बस सिर्फ एक टास्क हाँ, बन जाएगा। फॉर्मेलिटी बन जाएगी ना, गोल नहीं यस है ना, पता नहीं है क्यों कर रहे हैं। यस दिस इंपॉर्टेंट वर्ड यू टू अंडरस्टैंड, उत्साह क्यों, उसके बाद सभी ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएंगे। उत्साह इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। प्रभुपाद बोलते हैं, यस एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड उत्साह। कोई भी जो चेष्टा है, हम अपने बुद्धि से भगवत भक्ति के अनुरूप जो शास्त्रों में दिया गया है, हम उसको आचरण करेंगे, उसको बोलते हैं उत्साह। जी। इन डेफिनेशन ऑफ उत्साह एज पर रूप गोस्वामी, सी, कुछ कार्य के लिए हमें उत्साह होना ही है। इवन हमें फॉर एग्जाम्पल आपको लंच का टाइम हुआ है, आपको उठ के जो है बॉक्स लेके नहीं तो लंच का टेबल, डाइनिंग टेबल तक पहुंचना, उतना तो उत्साह होना है ना? यस वो भी उत्साह नहीं तो क्या होगा? आपको लाइफ के बारे में चिंता नहीं है, आपको पता ही नहीं लाइफ क्यों जीना है। समझ रहे हैं ना? सो एवरी एक्टिविटी ऑलरेडी वी आर यूजिंग उत्साह, बट बीइंग मिसयूज्ड, मिसडायरेक्टेड, लिमिटेड टू मेरा शरीर का और शरीर के संबंध में जो है उत्साह चल रहा है। अच्छा, मेरा बेटे का जो है आज जो एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, बहुत उत्साह। हाँ, नहीं तो मेरे 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 घर पे कोई शादी है, बहुत उत्साह, इंतुजियाज्म पूरा, इतना उत्साह से सच के डच के जाते हैं। जैसे मैंने देखा है ना, राम कभी बाहर निकलना चाहते हैं, वो बहुत उत्साह होता है ना उसका। हाँ, सचिन, टू मच एक्साइट। Just overexcited. करेक्ट, ही इज हैविंग लॉट ऑफ Yeah. enthusiasm to go out and roam around, है? So that's already this quality is there. तो अभी हमारा उत्साह क्या हो गया है? वो अलग अलग तरीके से हो रहा है। वो भगवान के भक्ति की तरफ जाना है। प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, जब when that enthusiasm, when the endeavor is executed, see, उत्साह यानी कि एक एक्शन होना है। एक्शन हमारा बुद्धि के साथ भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रहेगा, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंथुसियाज्म। यू मेकिंग अ पॉइंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंथुसियाज्म, राइट? और प्रभु जी। जब वो वही एंथुसियाज्म
हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हेल्प नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। हाँ, लोग बहुत उत्साहित है हर चीज में, परंतु व्हाट इज द एंड रिजल्ट? प्रभु जी इसमें एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। तो किस प्रकार का माइंडसेट होना चाहिए प्रभु जी, जैसे जो डिवोटीज है उनका, मतलब लाइक जस्ट आई गिव यू एन एग्जांपल, डू वी थिंक कि वी हैव टू गो बैक टू गॉड हेड, एग्जैक्टली, है ना? तो वो दिमाग में 24 घंटे चलना चाहिए कि हाँ एक दिन भगवान प्राप्त हो जाएंगे। वो चलते रहना है, क्योंकि देखिए एक फैमिली मैन अपने फैमिली का जो उनका जो फैमिली के ऊपर उतना उनका प्रेम है, अटैचमेंट है, इसलिए तो उसका उत्साह है ना, मुझे काम करना है, पैसा कमाना है। आपके जो मिडिल ईस्ट में इतने सारे लोग भारत से क्यों आए हैं? हमारा फैमिली मेंटेन करना है, फैमिली अटैचमेंट, उत्साह है उनको। तो इधर से उधर जाने का क्या क्या उनको प्रॉब्लम था बोलिए? भारत हो जाता ना, नहीं उधर मुझे 3 गुना सैलरी मिलता है, उससे ज्यादा मुझे मेरे बच्चों का अच्छा पढ़ाई करा सकता हूँ, मेरा फैमिली अच्छा रह सकता है। उत्साह, गोल क्या है हमारा? तो प्रभुपाद जी वही शुरू करते हैं शुरुआत में कि प्रभुपाद जी फर्स्ट बोलते हैं भक्ति यानी कि वो केवल मेडिटेशन नहीं है, एक जगह बैठ गए शांति शांति। हाँ, भक्ति यानी कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी। ऑलरेडी हमारा पास ये सभी गुण हैं, उत्साह है, धैर्य है, निश्चय है, हम इसको अभी अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं और उलझ रहे हैं, वी आर गेटिंग एंटैंगल्ड। हम उसी को जब भगवत धाम पहुंचने का हमारा लक्ष्य रहेगा, जैसे प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं हमें कैसे हमारा उत्साह को, निश्चय को, धैर्य को चैनलाइज करें, स्ट्रीमलाइन करें गुरु के आदेश के अनुसार, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। समझ गए? तो भगवान समझाते हैं दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट फॉर द लिविंग एंटिटीज। ये भौतिक संसार क्या है? एक कारागृह है हमारे लिए। परंतु हमारा स्वभाव क्या है? आनंदमय, वी आर ऑलवेज प्लेजर सीकिंग। तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा ना हमेशा, वी आर ऑलवेज एंडेवरिंग हाउ टू कम आउट ऑफ दिस कन्फाइनमेंट ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड एंड बिकम फ्री। हमें हमेशा आजादी चाहिए, लिबरेशन चाहिए। भौतिक संसार में आजादी का बात ही नहीं है, आजादी नहीं है, क्योंकि अभी इस शरीर में कुछ काम करेंगे, इससे एक और शरीर मिलने वाला है, इस तरीके से जन्म मृत्यु चक्कर में देहांतरण हो रहा है, ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं। तो शास्त्रों से, गुरु साधु शास्त्र से हमें यही पता चलता है कि ये ब्रह्मांड भ्रमण को कैसे रोक सकते हैं, जब हम एक गुरु के आश्रय में आएंगे और उनका मार्ग में चलते जाएंगे, वो जैसे रास्ता दिखाते हैं, तो ये हमें मोक्ष का साधन हो जाएगा। तो ये सुनते ही अच्छा, मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं, मैं जन्म मृत्यु को बंद कर सकता हूं, आई कैन कम आउट ऑफ ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। वाओ, वेरी एंथुसियाज्म हो जाता है उसको उत्साह मिल जाता है, इससे एनर्जी, ऊर्जा मिलता है। ये ड्राइव करना है उसको, ये यानी कि द बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, वेयर आई एम हेडिंग टुवर्ड्स, मैं कहां जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं। सो ही हैज अ क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन लाइफ। इस तरीके से उसका उत्साह आगे बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? तो ये सभी क्वालिटीज ऑलरेडी हम में है। सो जब उत्साह बढ़ता है, तो फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने बिजनेस शुरू किया, उसको लग गया कि हाँ ये बिजनेस अभी अच्छा चलना है, अच्छा चलेगा, मुझे पूरा स्टडी किया, मार्केट रिसर्च कर लिया है, ये बिजनेस अच्छा चलेगा। तो उसको बहुत उत्साह से उसने यहाँ वहां से जो लोन लेके बिजनेस शुरू किया उसने। और बिजनेस ऐसा नहीं कि आज बिजनेस शुरू किया कल उसको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्या बताइए? यस और नो? कल्पना माता जी, नहीं आज बिजनेस शुरू किया कल मुझे पूरा प्रॉफिट करोड़ों रुपए हो जाना है, नहीं मिलेगा। पेशेंस होना है। हाँ, उसको बोलते हैं टाइम लगता है, निश्चया, कि धैर्य, और उसको कॉन्फिडेंट होना है, निश्चय होना है कि हाँ मैं करेक्ट मार्ग में चल रहा हूं, मैंने पूरा रिसर्च कर लिया था, मैंने देखा हुआ है, और इस तरीके से और लोगों का जो है उनको एक सक्सेस हुआ है, मेरा भी होगा बोल के उसको निश्चय, कॉन्फिडेंस है। तो सेम प्रिंसिपल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस हमने सिंगल हैंडेड शुरू किया, प्रभुपाद जी अकेले गए थे,
हाँ, उनको क्या एंथुसियाज्म था? उनके गुरु महाराज का आदेश, और उनको उन्होंने इतने सारे जो है शास्त्र का पूरा ज्ञान उनका था कि उसका उद्देश्य ही है लोगों को कृष्णा कॉन्शियस बनाना है। ये एंथुसियाज्म से प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं अमेरिका साइट सीइंग के लिए नहीं गया, वहां पे लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस देने के लिए गया, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी का उत्साह नहीं होता तो 70 ईयर्स एज में जाते हैं क्या? हम देखते हैं लोग 60, 70, 65 तक क्या होता है, पूरा उत्साह कम हो जाता है, एनर्जी नहीं है। और प्रभुपाद जी उस एज में उत्साह लेकर भागे, कहां कहां भागे, पूरा दुनिया भर। और पेशेंस, धैर्य होगा, ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इमीडिएटली हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, है ना। शुरुआत किया छोटे से एक कमरे से, वो भले वो भी नहीं था प्रभुपाद जी के पास, धीरे 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 संस्था बढ़ते गया। और प्रभुपाद जी का क्या धैर्य था, कि भगवान हमेशा हमारा रक्षा करेगा। भगवान कृष्ण का यह आश्वासन है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो। भगवान का यह आश्वासन है। प्रभुपाद जी शरणागति एक बात बताते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, भगवान कृष्णा विल श्योरली प्रोटेक्ट मी एंड गिव मी हेल्प फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति करने के लिए उत्साह, धैर्य और निश्चय, यानी कि कॉन्फिडेंस। प्रभुपाद बोलते हैं वेरी नाइसली टुवर्ड्स द एंड, enthusiastically executing the regulative principles of devotional service। बहुत उत्साह से भक्ति का सभी नियमों का अनुसरण करना, बहुत धैर्य से और निश्चय से। यानी कि भक्ति हमारा मनमर्जी नहीं करना है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। जिस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है, गुरु साधु शास्त्र जिस तरीके से बताएं हम करेंगे। और भक्ति करने के समय में हमें यह भी ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट एसोसिएट विद some other people who don't follow भक्ति, क्योंकि उनका संग करने से हमारा भक्ति का जो उत्साह कम हो सकता है ना। जब प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं ना, आयरन रॉड को आपने फायर में रखा है, तो बहुत देर तक रखा है, उसके बाद सडनली उसको निकाल के आपने पानी में रख दिया, क्या होगा? उसका जितना हीट डेवलप हुआ है वो थोड़ा कम हो जाएगा तुरंत। तो ये संगत त्याग, यानी कि अनवांटेड एसोसिएशन, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका संग से दूर। प्रभुपाद जी बोलते हैं 3 लोगों से दूर रहो, कर्मी, ज्ञानी, योगी। इन लोगों से दूर रहिए आप, क्योंकि ये लोग भक्ति तो नहीं कर रहे हैं, उनका गोल अलग ही है, तो उनसे दूर रहिए। प्रभुपाद रिपीट करते हैं बात बार बार पर्पस में, इस बुक में। हमें कर्मी, ज्ञानी, योगी। कर्मी मीन्स व्हाट? Sachin, who is a कर्मी? who is entangled with the मतलब मैं कर्म करूंगा ये फल मिलेगा, उसी उसी मतलब साइकिल में फंसा हुआ है, दैट इज कर्मी। कर्म करके मुझे जो फल मिलेगा उससे मैं एंजॉय करूंगा, हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये मेंटालिटी में काम करता है वो। और जी। हर कर्म में वो रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है, अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसको बोलते हैं कर्मी। हाँ, तो लाइफ का जो है गोल क्या है पता नहीं है, उसका इमीडिएट क्या है, उसका लाइफ में सेंसेशन ही इंपॉर्टेंट है। मुझे काम करो, पैसा कमाओ, मस्ती करो, और पैसा कमाओ और मस्ती करो, बस लाइफ में यही है, मोर एंड मोर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, इसको बोलते हैं कर्मी। ठीक है, तो ज्ञानी कौन होता है? कल्पना माता जी। जी, जो सिर्फ पढ़ के भगवान को जानना चाहते हैं, जैसे ज्ञान, जो सिर्फ ज्ञान के थ्रू भगवान को जानना चाहते हैं, ज्ञानी नहीं, करेक्ट आंसर नहीं है। ज्ञानी क्या बताइए? वो प्रभु जी जो मतलब दे आर एंगेज इन फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, और मतलब मेंटल कॉन्कॉक्शन से, मतलब हाँ जी, बोलिए, करेक्ट बोलिए। हाँ, तो मेंटल कॉन्कॉक्शन से वो मतलब भगवान को जानना चाहते हैं, मतलब एक्चुअली तो उनकी नजरों में भगवान साकार है ही नहीं, निराकार। करेक्ट। हाँ, वो उस लेवल पे, स्पेकुलेशन के लेवल पे क्यों आ गए हैं? क्योंकि वो अपने ज्ञान पे ज्यादा भरोसा करते हैं, मतलब किसी के प्रति विनम्र होके, मतलब जो
वो गुरु या स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाके दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द गॉड, दे वांट टू हैव देयर ओन फिलॉसफी टू अंडरस्टैंड द गॉड. So this is why they get entrapped into their own mental world. ठीक है. भूमिका जी, what is your understanding? Who is a ज्ञानी? प्रभु जी, मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो वैदिक नॉलेज को लेके और उसको आप फिलोसफिकल और मेंटल स्पेकुलेशंस करते हैं उसके ऊपर, Speculation, हाँ. तो Why did वो the ज्ञानी person become philosophical? Why did they become a speculator? एंड Why? दे बिलीव दैट लॉर्ड इज निराकारा, ही इज ठीक है. सुप्रीम ब्रह्मन. वो ज्ञानी तक क्यों आ जाते हैं? ज्ञानी का लेवल पे क्यों आ जाते हैं लोग? मेंटल क्यों बन जाते हैं? बिकॉज उनको वैदिक नॉलेज जो वो लेते हैं वो निराकार ब्राह्मण के ऊपर लेते हैं. उनको इतना सारा एक्सपीरियंस हो गया मटेरियल वर्ल्ड में, इतना बुद्धि आ गया है कि मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करना कोई फायदा नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना बेकार है. करेक्ट? कर लिया, बहुत कर लिया हमने, क्या है, क्या मिला, कुछ इसमें नहीं, कुछ नहीं है ना. वो सोचते हैं कि इसमें कुछ रस नहीं है. हमें जीवन का लक्ष्य क्या है समझना है. स्पेकुलेट मतलब कि वो जीवन का लक्ष्य के बारे में ढूंढ रहे हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं. ये लाइफ ये नहीं है. जैसे हम देखते हैं ना, बहुत सारे कभी कभी सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े जो है टीवी शोज में, टॉक शोज में बात करते हैं ना, लाइफ इज ऑल इज नो इट सेंस ग्रेटिफिकेशन, नथिंग वी हैव टू लुक फॉर. अभी रिसेंटली में वो इंटरव्यू हो रहा था ना प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो कोई आया था, वो एक पॉडकास्ट हुआ, अमेरिकन एक फेमस पर्सन. तो वो उस क्वेश्चन था, वो पॉडकास्ट वाला बोलता है प्राइम मिनिस्टर को, आप मृत्यु से डरते नहीं है? तो फिलोसफी तो बहुत अच्छा पता है प्राइम मिनिस्टर को, मोदी को. मोदी क्या बोलते हैं, संसार में कुछ निश्चित है तो वो मृत्यु है. मृत्यु होना ही है तो क्यों डरना है? मुझे डर नहीं लगता है. तो क्या करना है? तो हमें पूरा लाइफ में एक्टिविटीज करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है बस. कब मृत्यु आएगा? देखिए, क्लैरिटी नहीं है. ही इज ए फिलोसोफर, गुड, ज्ञानी, बट नो क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन. समझ रहे हैं आप? ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के और बड़े बड़े जो थिंकर्स के बात सुनेंगे ना, पूरा ऑल इन वेरी वेरी पूरा वोलाटाइल, क्लैरिटी नहीं है, ओपन एंडेड आंसर्स. प्रभुपाद जी देखिए क्या बोलते हैं, केवल ज्ञानी होने से कोई फायदा नहीं है. हमें आगे समझना है कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है. ज्ञानम ज्ञेयम, गीता में भगवान बताते हैं. ज्ञान एक बात है, ज्ञेय ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का उद्देश्य क्या है वो समझना है. तो प्रभुपाद जी वेरी क्लियर. ज्ञानी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. बहुत जन्म जन्मांतर के बाद, लक्ष लक्षांतर जन्मों के बाद वो ज्ञानी जो है समझ आएगा उसको, अरे वास्तव ज्ञान ये है, भगवान का शरण में आना है. समझ गए? और एक कैटेगरी है योगी. तो शुभी माता जी बताइए, आप योगी कौन है? योगी, हु इज अ योगी? प्रभु जी, योगी वो हैं जो मेडिटेशन और अष्टांग योग में जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, जो तपस्या से और उससे भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं. क्या करना चाहते हैं? तपस्या से क्या करना चाहते हैं? भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तपस्या के मार्ग. क्या क्या प्राप्ति करना चाहते हैं? ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूं. योगी, बोलिए बोलिए, और कोई इसको किसी को कंट्रीब्यूट करना करिए. व्हाट इज योगी? जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगी. योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ. कंट्रोल करके हठ योग या अष्टांग योग से, हठ योग से अपने सेंसेस को कंट्रोल करके और अपने सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं, अपनी आत्मा की शुद्धिकरण करना चाहते हैं या भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं. वो अलग अलग लेवल के योगी हैं. जनरली योगी का क्या उद्देश्य है बताइए? सिद्धि प्राप्त. सिद्धि क्या होता है? सिद्धि है, कितना सिद्धि है, कितनी सिद्धि है? जी. How many cities are there?
मुझे मतलब वी अंडरस्टूड 4 टाइप्स ऑफ मतलब फोर 4 8 टाइप्स ऑफ योगा बेसिकली। 8 8 8 तो हमें जनरली पता है, भागवत में बताते हैं 21 सिद्धीज आर देयर। एनीवे वो एडवांस टॉपिक है, अभी नहीं टच करेंगे। 8 तो रेगुलर है, अष्ट सिद्धि, बिकमिंग अनिमा महिमा लगिमा। प्रभुपाद जी बार बार बोलते रहते हैं इसके बारे में। एक आदमी इतना लाइट हो जाता है योग सिद्धि से, योग सिद्धि करके लोग जो है सोसाइटी में आ जाते हैं और अपना मैजिक दिखाते हैं। यदि कुंभ में देखा था ना, सुना था ना, हम सुन रहे थे ना, अरे ये तो फायर डिनोट कर सकता है, ये तो वो कर सकता है, ये तो ये कर सकता है। तो लोगों को वो चमत्कार लगता है। तो योग सिद्धि से योगी कुछ इज एक्सपेक्टिंग मेटेरियल बेनिफिट। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। भुक्ति यानी कि कर्मी, मुक्ति ज्ञानी। ज्ञानी का उद्देश्य क्या है, मुझे मुक्त हो जाना है, लिबरेशन। लिबरेशन क्या है पता नहीं उसको, ठीक है। और सिद्धि, योग सिद्धि, योगी सिद्धि, मुझे उड़ना है, मुझे पानी में जो है चलना है, तो सिद्धि है ना। तो ये सिद्धि, इतना सिद्धि बहुत बड़ा महान व्यक्ति है, भगवान भगवान। ये सिद्धि सिद्धि तो मेटेरियल अचीवमेंट्स है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये सभी जो ये मेटेरियल अचीवमेंट यानी कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं, मुझे इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाना है और ये सिद्धि प्राप्त करना है, ये सभी सकली अशांत, ये केवल भौतिक तरीके का अचीवमेंट्स है बस। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भगवत भक्त जो है वही एक शांत आदमी होगी, उसको भुक्ति मुक्ति सिद्धि नहीं चाहिए। कर्मी ज्ञानी योगी का कोई उद्देश्य नहीं। इसलिए हमारा गोल क्लियर होना है, कहां जाना है हमको। हमें ज्ञानी बनना है बस, वो तो अलग तरीके का, उसका उत्साह अलग होगा। उसको हमेशा जो है वो अलग अलग जो निराकारवादी जो बात करते हैं उसका इंटरेस्ट हो जाएगा उसको। देखिए, हमारा लक्ष्य के आधार पर हमारा उत्साह, हमारा निश्चय, हमारा धैर्य शेप अप होता है। एक आदमी को ना बड़ा आदमी बनना है, बड़ा रिच आदमी बनना है, उसको बहुत धनी आदमी बनना है, तो मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो क्या उसका उत्साह क्या होता है, कुछ स्टॉक मार्केट न्यूज पढ़ना, उसमें कैसे इन्वेस्ट कर, कैसे जो होता है चलना। आदमी का क्या गोल है उसके हिसाब से वो उसको परस्यू करता है, उसको पीछे भागता है, समझ रहे हैं। उसके लिए उसको बहुत उत्साह रहता है। कोई आदमी एनी पर्सन वांट टू बिकम अ मॉडल, तो दैट पर्सन इज वेरी इंटरेस्टेड टू नो मॉडलिंग क्या है, फैशन टेक्नोलॉजी क्या है, उसी का बारे में ज्यादा। इसलिए देखते हैं ना इतना सारा डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है। somebody want to become scientist, साइंस के बारे में पूरा पीछे पीछे देखो, everybody has their own goals, but that goal is going to help me spiritually, they don't know. That's the problem. इसलिए हमें तत्त कर्म प्रवर्तनात्, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, तत्त कर्म प्रवर्तन की हमें जो हम कर रहे हैं, हमारा गोल फिक्स हो गया भगवान का, हमें रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जैसे हमें शास्त्र में बताते हैं, आचार्य बताते हैं, उसे फॉलो करना है। यम नियम, प्रभुपाद जी बोलते हैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, यम प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ हमें क्या करना है, पॉजिटिव जप करना है, एकादशी फॉलो करना है, और ये सबको एंथुसियाज्म उत्साह से करना है और धैर्य से करना है। ऐसा नहीं कि अब चैंटिंग शुरू कर लिया कल महान भक्त बन गया, नहीं, धीरे धीरे पेशेंस रहना है। और ये निश्चय भी होना है, कॉन्फिडेंस भी होना है कि हाँ कृष्ण बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत सारे भक्तों का जो हम देख रहे हैं एडवांस हो रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस होना है। और साथ ही साथ दूसरे जो अभक्तों का संग छोड़ देना है। एंड 5th 6th लास्ट प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, शतोवृत्ति ही, और जो हम कार्य कर रहे हैं शुड बी वेरी सिंसियर एंड हॉनेस्ट। शतोवृत्ति का एक जगह पे प्रभुपाद जी एक और जगह पे बताते हैं लेक्चर में, शतोवृत्ति यानी कि हमारा जो चेष्टा है वो बहुत प्रामाणिक होना है। प्रामाणिक कैसे होगा,
जब हम प्रामाणिक आचार्यों का, प्रामाणिक गुरुओं का मार्ग में चलेंगे। तत्ववृत्ति मीन्स बेसिकली उनका पदचिन्ह में चलना, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ दिस ग्रेट डिवोटीज। हमारा कार्य शुद्ध होना है। तो प्रभुपाद जी लाइफ सो ओपन, कुछ ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कर दिया, सब छिपा के कुछ किया, नहीं, ओपन, एवरीबडी नोज हिज लाइफ। समझ रहे हैं ये बात? बस दिस इज द थर्ड वर्स, वेरी वेरी सिंपल। जो हर कार्य में उत्साह होना, जैसे अभी सेशन है, आज सैटरडे सेशन है, उत्साह होना है। अरे सेशन आएगा, मुझे रेडी करना है, प्रिपेयर होना है। उत्साह नहीं है तो अरे सेशन है ना, देखेंगे बाद में, आराम से ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, 12-20 को 10 मिनट रहेगा ना बस। ज्यादा सुनने का नहीं है। जैसे होता है हमारे ना संडे जब भागवतम क्लास होता है, अभी तो वृंदावन में ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, उधर सिटीज में हम देखे हैं, कुछ भी कहीं पे भी हम क्लास करते हैं संडे में, एक स्पेसिफिक फिक्स क्लास होता है ना, क्लास में शुरुआत में कोई नहीं रहता है, जब अंत में 10 मिनट से पहले बहुत सारा रश हो जाता है। क्यों? क्लास के बाद प्रसादम है, उसके लिए उत्साह बहुत है। क्लास के लिए उत्साह नहीं है, प्रसादम के लिए उत्साह ज्यादा है। ठीक है, अच्छी बात है, एटलीस्ट प्रसादम के लिए तो आते हैं। देखिए हमारा कैसे मेंटालिटी हो गया है, अरे फिलोसफी सुनना है, समझना है, उत्साह नहीं है। समझ रहे हैं? तो वी कैन जज आवरसेल्फ वेयर वी आर स्टैंडिंग, हमारा उत्साह कहाँ है। इवन इन प्रोग्राम्स ऑल्सो प्रभु जी, वो जब तक कीर्तन डांस हो रहा होता है ना, तब तक पीपल आर देयर। एज सुन एज दैट डिस्कोर्स स्टार्ट्स, एवरीबॉडी गोस अवे। हाँ, वो सारे लोग फिर हॉल में मिलते हैं, प्रसादम हॉल में। हाँ, प्रसादम वाले मिल जाते हैं। वो उत्साह से देखते रहते कितना आइटम है, मुझे कितना हाँ। मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। अच्छी बात है, प्रसादम ले रहे हैं, नॉट ईटिंग एनीथिंग एल्स, बट गुड एंथुसियाज्म एटलीस्ट। लेट देम स्लोली। हम तो प्रसाद ले लेके भक्त बन गए इस तरीके से। एनीवे गुड। प्रभु जी एक क्वेश्चन था इसमें, बोलिए। मतलब इसमें योगी, भक्त और ज्ञानी तो बता दिया, हाँ। ये एथिस्ट प्रभु जी, इसमें जैसे एथिस्ट किसके अंदर आ जाएंगे? वो कर सकते हैं? संगत त्याग में आ गया ना, वो भी आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। वो भी आया, मतलब ये इनसे डेंजरस होते हैं कि इनसे कम डेंजरस होते हैं प्रभु जी? एटलीस्ट दे आर लिटिल बेटर देन दिस थ्री। अच्छा, ओके। बिकॉज एटलीस्ट दे विल नॉट डिस्टर्ब यू सो मच। वो अपने काम से मतलब रखते हैं। हाँ। ये लोग है ना, थोड़ा जानते हैं ना, दे आर मोर डेंजरस। ये ना आपको समझाने लगते हैं, कोई ज्ञानी समझाने लगते हैं, क्या कर रहे हैं जपा, क्या फायदा हुआ, आप शांति से ध्यान करो ना। कोई जो है रामकृष्ण आश्रम से बोलेगा ये विवेकानंद का बुक पढ़ो ना। हाँ, अच्छा, वो और कोई जो है ब्रह्मा कुमारी से आएगा, ओ ये सब ठीक नहीं है, ये गलत है, ऑफेंस ज्यादा करेंगे वो लोग। एथिस्ट तो एटलीस्ट चुप रहते हैं। देखिए एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे, श्लोका 2 एंड श्लोका 3 में एक पॉइंट कॉमन है। somebody has observed that, एक जो पॉइंट जो रूप गोस्वामी बोलते हैं कॉमन है, कौन सा है? संग त्याग। संग त्याग। देखिए यानी कि एसोसिएशन, जिसका आप संग करते हैं इंपॉर्टेंट है वो। इसमें तो उन्होंने बोल दिया ऐसे लोगों का संग नहीं करना, किसका? जो अभक्त हैं, जो जो ज्ञानी है, योगी है, उनसे भक्त नहीं करना नहीं, क्योंकि वो मायावादी है, सब हमारा दिमाग बिगाड़ेंगे वो ज्यादा। प्रभु जी इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है फिर, ये जैसे प्रीचिंग मिशन चल रहा है जैसा आपका, तो मतलब हम भी जैसे आगे थोड़े बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्रभु जी इनको सुधारने के लिए मतलब कहीं ना कहीं एसोसिएट तो होना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ मैंने एक देखा कि चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं कि बिल्कुल होना ही नहीं है एसोसिएशन। बस आप स्ट्रांग हो जाए थोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे। आप ही स्ट्रांग नहीं है तो क्या आप उनके लेवल पे आ जाएंगे, अभी जाएंगे तो। बराबर, ठीक है ना? आपको ही बीमारी इतना है कि आप उठ नहीं सकते हैं, आप बोल रहे कि वो भी बीमारी, उसको जाके मैं देखूंगा। अरे आप फर्स्ट उठने का तो आपका शक्ति आ जाने दीजिए, उसके बाद जाइए ना उधर, कौन मना कर रहा है? प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद जी उस जगह पे गए हैं जो लोगों को कुछ पता ही नहीं है और इतने माया में डूबे हुए थे। एथिस्ट थे, ऐसे ज्ञानी थे, बुद्धिस्ट थे, बहुत सारे लोग थे, मिक्स थे ऊपर। प्रभुपाद जी जाके उनको उद्धार किया।
ये प्योर डिवोटी का पावर है। प्योर डिवोटी कहाँ पे भी कहीं भी जाके उनको लिबरेट कर सकते हैं। हमारा लेवल उस लेवल तक नहीं है अभी, हम जाके उधर फंस जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत सारे स्वामी आए थे पहले, आए के वो भारतीय संस्कृति का, वैदिक संस्कृति को छोड़ के यहाँ पे मांस खाने लगे, ड्रेस चेंज करने लगे। प्रभुपाद जी ने कुछ भी चेंज नहीं किया अपना वेशभूषा में, अपना आचरण में, बल्कि प्रभुपाद जी ने सिखाया सबको ये करो। समझ रहे हैं? हम क्या होता है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे। प्रभुपाद जी ने इन्फ्लुएंस किया, उसके लिए शक्ति चाहिए, स्पिरिचुअल पावर चाहिए, जो गुरु कृष्णा, गुरु कृपा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोका नंबर 4। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट्स, रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस, inquiring confidentially, accepting prasada and offering prasada are 6 symptoms of love shared by one devotee and another. तो हमने अभी 3 श्लोक जो पढ़ा है वो इंडिविजुअली हमारे लिए वो लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वेग हमारा अंदर में क्या है वो कंट्रोल करना हमारा हाथ में है। और जो अत्याहारा, जैसे सामने जो है बड़ा प्लेट में 10 रसगुल्ले हैं, आप 10 रसगुल्ला किसी के बारे में सोचेंगे नहीं मैं खा लूंगा अपना, आपके हाथ में नहीं एक खा लूंगा, बाकी सब भक्तों को ले सकते हैं। अत्याहारा, प्रयासा, प्रजल्पा, ये सब आपके हाथ में है इंडिविजुअल। और उत्साह, हर दिन मंगलारती में उठना, जप करना, हाँ प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सब अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे चल रहा है। तो हम इस संसार में अकेले तो नहीं है, इस संसार में हम लोगों के बीच में हैं। हाँ, हमारा फैमिली साथ में है, हाँ, फैमिली के बाहर कम्युनिटी है, सोसाइटी है ना। तो हमारा आचरण कैसे होना है, और वो आचरण भी भक्ति के अनुरूप होना है। सो हाउ टू परफॉर्म डिवोशनल एसोसिएशन और डिवोशनल एक्टिविटीज इन एसोसिएशन ऑफ अदर डिवोटीज, ये बात बता रही है। और भक्तों के अलग अलग लेवल क्या क्या है वो नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे दीपक गोस्वामी। अभी तो इतना जानने की कोशिश करेंगे कि वी आर ट्राइंग टू, हम जैसे आपके घर पे आप है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति। और अब जब कम्युनिटी में आते हैं, डिवोटी कम्युनिटी में, वहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज देखते हैं, जो अभी हमारा जो इधर ग्रुप हमने बनाया हुआ है, सब डिवोटी कम्युनिटी है जो फॉलो कर रहे हैं। जब हम आपस में मिलेंगे और आपस में जब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, वी डिस्कसिंग ऑन समथिंग, तो कैसे हमारा जो डिवोशनल एक्टिविटीज कैसे होना है। तो अभी 1 घंटे हम सेशन लेंगे तो हम खाली जो है पॉलिटिक्स में क्या हुआ, अभी वक्फ का जो है ना एक बिल पास हो गया, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दीपक जी आपके यहाँ, क्या इफेक्ट है, वो थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं हम, नहीं है ना। हम क्या बात कर रहे हैं, हम तो भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस है। जब डिवोटी कम्युनिटी में हम भक्ति का कार्य कैसे करें, ये बात समझा रहे हैं रूप गोस्वामी। तो इसमें 6 तरीके के प्रिंसिपल्स हैं, इसको प्रीति लक्षणम बोलते हैं चैतन्य रूप गोस्वामी। ददाति ग्रहणाति, यानी कि हाँ, आपको कुछ देना और आपको कुछ स्वीकार करना, गिविंग एंड टेकिंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल, हाँ, आपका मन के बातें बताना और दूसरा व्यक्ति का मन के बात सुनना। और थर्ड नेक्स्ट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इज, हाँ, जब आप हमारा मंदिर में आएंगे आपको प्रसाद देंगे, और जब हम आपके घर पे आएंगे आप बोलेंगे प्रभु जी प्रसाद लीजिए। बस इतना ही है। डिवोटी कम्युनिटी में दूसरे भक्तों के संग में हम कैसे जो है भक्ति का आचरण कर सकते हैं,
प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। साधारण तरीके से सोशल एक्टिविटीज में भी क्या होता है, ये तरीके के 6 डीलिंग्स आर ऑलरेडी देयर, है ना। फॉर एग्जांपल, एक मैरिज फिक्स होना है, ठीक है। तो मैरिज फिक्स होने का टाइम में क्या होता है, घर लड़के वाले एक जगह मिलते हैं ना, मीटिंग करते हैं ना। हाँ, मीटिंग करते हैं। मीटिंग में खाली मीटिंग करके क्या करते हैं, हाँ, कुछ गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं, बातचीत होते हैं, मन के बातें बोलते हैं, वो बोलते हैं। और हाँ, कुछ खाने के लिए आप जो है वो देते हैं, आप कुछ स्वीट बॉक्स लिए होंगे, लेके गए होंगे, आप देते हैं, करेक्ट ना। सेम थिंग प्रोपा जी एग्जाम्पल देते हैं इधर पे। हाँ, दो व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन, हाँ, बिजनेस करने के लिए साथ में आना चाहते हैं। क्या करते हैं, हाँ, तो वो उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, और बढ़ा सकते हैं, उनके साथ हम टाई अप करेंगे, हाँ, ज्वाइन हो जाएंगे उसके साथ। तो क्या करेंगे, 2 बड़े बिजनेसमैन एक होटल में मिलते हैं, है ना, होटल में मिलते हैं, और वो ये बिजनेसमैन अपना मन बताता है, वो अपना बताता है, वो दोनों बात करते हैं कैसे आगे बढ़ सकता है। और बातों बातों में वो ये बिजनेसमैन कुछ गिफ्ट लेकर आया होगा, वो लेता है, वो भी कुछ देगा, खाने के लिए ये मंगाएगा, वो भी मंगाएगा। दिस हाउ इट हैपेंस, दिस कॉल्ड द एक्टिविटीज ऑफ लव। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं whenever there is a dealing of preeti or love in intimate dealings, these 6 activities are executed. और प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा जो संस्था है इस्कॉन हरे कृष्णा आंदोलन, इट इज मेंट, इज एस्टैब्लिश्ड टू फैसिलिटेट these 6 kinds of loving exchanges between devotees. भक्तों के बीच में यही जो 6 तरीके के जो कार्य हैं उसका आदान प्रदान होने के लिए हम इसको एस्टैब्लिश किया हुआ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हर संडे में, फेस्टिवल्स में हम प्रोग्राम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, हाँ हाँ, वो आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, अपना बात बताते हैं, हम अपने बात बताते हैं, भगवान का लीला क्या है बताते हैं, वो अब सुनते हैं, और वो भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और जो प्रसाद देते हैं वो लेते हैं, हाँ, वो भी कुछ भगवान के लिए भोग लेके आते हैं, वो हम स्वीकार करते हैं, भोग लगाते हैं। देखिए, इज ऑल एक्सचेंज, दिस हाउ डिवोटी कम्युनिटी एक्सचेंज। जो बाहर की दुनिया में जो चल रहा है, ये वही जो है यहाँ पे भक्तों के बीच में चलता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं the life of a Krishna conscious society is nourished by the 6 types of loving exchanges. ये 6 तरीके के जो प्रीति लक्षण जो है, इसके माध्यम से हमारा भक्ति कार्य वृद्धि होता है, हमारा जो है संस्था आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए लोगों को एक अवसर देना है, आइए आप, हाँ, मंदिर में आइए, एक सत्संग में आइए, ताकि उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस जो ऑलरेडी है उनके मन में, वो जागृत हो जाए। प्रभुपाद जी ने एक बात ऑलरेडी बताया हुआ है, वी हैव स्टडीड इन साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। भगवान के जो भक्ति है, उनके प्रति प्रेम भावना है, ऑलरेडी हमारे मन में है, खाली वो सो रहा है, अभी उसको जागृत करना है। तो ऐसे जब भक्तों के संग में आ जाते हैं, हाँ, वो देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे इतना सारा जो है भक्त जो है कीर्तन में लगे हुए हैं, चैंटिंग करा रहे हैं, प्रवचन चल रहा है, प्रसादम देते हैं, इससे क्या होगा, उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस अवेकन होगा, जागृत हो जाएगा। प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट आर्टिफिशियली इम्पोज्ड अपॉन द हार्ट। भगवत भक्ति जो है हमारे हृदय पर जो है फोर्सबली कोई किसी ने डाला नहीं है, नहीं डाल सकते हैं, ऑलरेडी हमारा अंदर है, वो जागृत करना है बस। हाँ, जब भक्तों के संग में रहेंगे, जप करेंगे, तो वो जागृत हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें एज ए डिवोटी हमें क्या करना है, हमें हरिनाम का दान करना है। लोगों से जब मिलते हैं उनको बोलना है जप करिए, जप करिए, क्योंकि वो जब जप ले लेते हैं ना, उनका जीवन बदल सकता है। प्रसाद लीजिए, जप करिए, हाँ, और कोई व्यक्ति बहुत प्रॉब्लम में है, उसको थोड़ा गीता के अनुसार समझाना, गुह्यम आख्याति, ये बात। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितना ज्यादा हम ज्यादा हरिनाम का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
उतना ज्यादा हम ददाती प्रिंसिपल, ददाती का तत्व का अनुसरण कर रहे हैं। और जो भगवान देते हैं गिफ्ट, कि जैसे हम किसी को बोलेंगे जप करना और वो आदमी जप करना शुरू करेगा तो भगवान हमें कृपा करेंगे, है ना, हमें आध्यात्मिक दिव्य आनंद देंगे, तो हमें और हमें और उत्साह बढ़ता है, वो और करना है, और लोगों से हरिनाम करवाना है, और लोगों को जोड़ना है प्रभुपाद जी की संस्था में। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स जो है, इस 6 तरीके के जो प्रीति लक्षणम जो है ना, ये बेस्ड ऑन ऑल द प्रिंसिपल्स यू डिस्कस्ड अर्लियर। उत्साह से, हमें उत्साह से आना है, लोगों से मिलना है, उनको जप के बारे में समझाना है, बोलना है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रभुपाद जी ने शुरू किया है, वो क्यों किया है? क्योंकि यही तो उद्देश्य है कि वो बुक पढ़ेंगे तो क्या होगा। एक बुक दिया आपने, उसने लिया, वो बुक पढ़ने से उनका जीवन बदल जाता है। और बुक में ये सब चीजें हैं, तो समझाएंगे आप मुझे? हाँ, क्यों नहीं। गुफिया आखियाती, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, an experienced devotee will explain and an inexperienced devotee learns from him. This गुह्यम आख्याति प्रिंसिपल, समझ रहे हैं? तो ये बात है, तो ऑलरेडी ये चल रहा है। हाँ, रूप गोस्वामी इसको एक तरीके से उसका एक रूपरेखा दे रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका नेगेटिव भी है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, जैसे हमें मायावादी से, ज्ञानी से, योगी से, उनसे कुछ लेना देना नहीं है, दूर रहिए। उनके साथ हमारा मन ऊपर नहीं करना है, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ आपको अच्छा तो नहीं करेंगे, अच्छा तो नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इट इज लाइक यू आर सिंपली फीडिंग ए स्नेक विथ मिल्क। एक सर्प को आप कितना भी दूध पिलाएंगे, केले देंगे ना, वो उसका विष बढ़ता जाएगा। हाँ, तो हमें उनका संग नहीं करना है, क्योंकि पूरा संसार में मायावादी और ये जो नास्तिक पूरे भरे हुए हैं। हाँ, और प्रभुपाद जी बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ मायावाद एंड अदर एथिक्स फिलॉसफीज टू प्रमोट मटेरियलिज्म। तो ज्यादातर लोग नास्तिक हैं, मायावादी है, तो उनको तो भक्ति का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो पॉलिटिकल पार्टी उनका सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ, तो उनका संग नहीं करना है, क्योंकि उनसे करने से कोई हमें फायदा नहीं है, और यही लोग जो है अपोज करते रहते हैं। तो इट इज बेस्ट टू अवॉइड एसोसिएशन with them completely and never ask them anything about anything confidential, because they cannot give any good advice. Right? Or we should not extend any invitations to them, because they will simply come and spoil our program. It is the negative injunction of this verse that we should refrain from giving anything or accepting anything from Mayavadi and atheists. ये बात ठीक है। So basically प्रभुपाद जी कंक्लूड करते हैं कि हमें भक्तों का संग में रहना है, और जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उसको फॉलो करना है। आचार्य के तत्त कर्म प्रवर्तनात् शतोवृत्ति, हाँ, किस तरीके से बताए, पूरा ओबीडियंसली फॉलो करना है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और विशेषकर गृहस्थ को प्रभुपाद जी इधर एग्जाम्पल दे रहे हैं। ददाती प्रिंसिपल, ददाती तत्व क्या है? Advanced devotee is supposed to spend at least 50% of his income in the service of Lord and his devotees. 50% तक अपना जो इनकम है भक्तों के और भगवान के सेवा में लगाना है। रूप गोस्वामी इस तरीके का एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है। राइट, जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो उन्होंने अपना 50% का जो इनकम था, हाँ, उसे कृष्णा के सेवा में, भक्तों की सेवा में उन्होंने रख दिया। 25% अपने रिलेटिव्स को दे दिया, 25% अपना पर्सनल इमरजेंसी के लिए रखा उन्होंने। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल एग्जाम्पल एवरीबडी शुड फॉलो। अपना कितने भी इनकम हो, 50% भगवान कृष्ण के, अपने भक्तों के जो लिए हमें रखना है। ये ददाती प्रिंसिपल है, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। यस, एनी क्वेश्चंस, एनी क्लैरिफिकेशंस? एक चीज इसमें पूछना थी कि अब जैसे प्रैक्टिकल ग्राउंड, जैसे दूसरा इस्कॉन कैंप है, तो वहां पे इंटरमिंगलिंग कभी चलती है क्या प्रभु जी? मतलब, और व्हाट इज द स्टैंड ऑन दैट, फॉर आवर साइड, because that
जैसे अभक्त तो नहीं है वो, लेकिन मतलब फिर भी प्रिंसिपल फॉलो तो नहीं कर रहे हैं वो लोग, राइट? तो वहां भी मतलब एसोसिएशन इज टोटली वारंटेड। तो देखिए, मुख्य मार्केट प्रिंसिपल क्या है, प्रभुपाद जी ने क्लियर इंडिकेशन दिया हमको, यहाँ तक कि हमें गौड़िया मठ के भक्तों से भी संग नहीं करना है। आपका चरणाश्रय आप पेपर में था ना एक क्वेश्चन, जी हाँ है, उसमें है, नहीं बराबर। याद है आपको? हाँ। जी जी Yes, हाँ, sir. तो मना क्योंकि उनका जो उद्देश्य है, उनका जो गोल है, भगवान कृष्ण है, ठीक है, परंतु जो जाने का तरीका है ना, थोड़ा अलग है। प्रभुपाद जी बोलते हैं थोड़ा बहुत भी हम उनके संग करेंगे ना, तो प्रभुपाद जी ने जो बताया उसका कंफ्यूजन रहेगा हमारा। अच्छा, घोड़ी मठ पे 64 राउंड स्टैंड करते हैं, हम 16 ही करते हैं, हम कम नहीं कर रहे हैं, छोटा आएगा ना। जो बराबर। घोड़ी मठ की एकादशी में वो टमाटो नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, हम सब खा रहे हैं, अरे तो हम एकादशी ब्रेक हो गया ना, जी इस तरीके से। क्योंकि वहां पे प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने कुछ सिस्टम बनाया है, आचार्य के अनुसार वो को चलना है। जाके हम अपना रेस्पेक्ट देके दर्शन करके आएंगे, अलग बात है। ज्यादा उनका एसोसिएशन करेंगे, मुख्य माक्याति प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, ददाती प्रतिगृणाति प्रिंसिपल आप फॉलो करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। यही प्रिंसिपल दूसरे इस्कॉन के साथ भी नहीं करना है, क्योंकि उनका क्या है, अभी रिसेंटली हमने देखा, न्यूज बहुत आ रहा है आजकल। अभी वो जो एक गुरु है ना, जयप्रकाश स्वामी, वो हाँ ऑलरेडी अपने जीवित समय में उन्होंने 2 और लोगों को एम्पावर कर दिया है, आप दीक्षा गुरु बन जाओ। प्रभुपाद ने कहा बोला है सब चीजें। अभी मैं बैंगलोर में नहीं जा सकता हूँ, और तिरुपति में नहीं जा सकता हूँ, उनको कोई दूसरा एक डिवोटी को बना दिया, आप दीक्षा गुरु बन जाओ। दीक्षा गुरु इतना आसान बात है क्या? तो यानी कि कहाँ पे जा रहे, देखिए उनका दिमाग। तो उनका एसोसिएशन करने का बात यह है, जाके गड्ढे में गिरेंगे। पूरा जो हमारा फिलोसफी का मजाक बना रहे हैं वो, बराबर। है ना। जी आप बाहर में कुछ भी बड़े बड़े बातें बोलते होंगे, बेसिक प्रिंसिपल क्या है आपका? मैं गुरु हूं, मेरी दीक्षा लेना है आपको। प्रभुपाद जी ने कहा बोला आप गुरु हैं, आप तो गुरु के प्रतिनिधि हो, आप प्रभुपाद जी की तरफ से कुछ सेवा कर सकते हैं इस तरीके से। प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी तक आप पहुंचाइए उनको। आप दीक्षा गुरु कभी नहीं बन सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ओनली वन दीक्षा गुरु, वो सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जी सिंपल। तो ये सब प्रिंसिपल समझ आ गया ना, कॉमन सेंस है, तो हम अपने आप दूर रहेंगे उनसे। क्योंकि उनका एसोसिएशन करने से क्या होगा, हाँ, हमारा जो है चीजें कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। हाँ, इसीलिए ना मैंने बोला, एक प्रिंसिपल रूप गोस्वामी रिपीट करते हैं, संगत त्यागा, संगत त्याग। संगत त्यागा बहुत ग्रॉसली जो है, वो एथिस्ट होंगे, कर्मी होंगे, ज्ञानी होंगे, योगी होंगे। हमारे कम्युनिटी में ही, भक्तों के कम्युनिटी में ही हम दूसरे भक्त जो हमारा प्रभुपाद जी का फॉलो नहीं कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, उनसे भी दूर रहना है। संगत त्याग उनसे भी करना है। वृंदावन में इतने सारे संप्रदाय हैं, वो प्रेमानंद महाराज, वो महाराज, ये महाराज, हम सब जगह जाके जाके कथा सुनेंगे तो क्या होगा, दिमाग खराब हो जाएगा। सही। इतने सारे कथाएं होते हैं, पूछे सचिन से कितना होते हैं, कभी कभी ना 10-10 हाँ कथाएं होते हैं। नहीं नहीं प्रभु जी जाएंगे ना, सत्संग हो रहा है। तो प्रभु जी, दिमाग खराब सब हो जाएगा। सबको सुन लिया हमने प्रभु जी। अंत में यही कंक्लूजन निकलता है कि जो प्रभु जी बोलते हैं वो हाँ, कहीं भी कोई आसपास नहीं है प्रभु जी उसके, ये बात कुछ भी नहीं है, फिलॉसफी के नहीं है क्लियर है, वो आसपास। पूरा क्लियर है। बहुत आसपास में नहीं, वो कोई समझ में नहीं पाता क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। सब लोग अपने दुनिया में है, सब दुनिया में सही बात। सब लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं बस। प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश करके देखिए, प्रभुपाद जी ने क्या बड़ा काम किया है। उन्होंने संस्था एस्टैब्लिश करके, बुक्स प्रिंट करके, पूरा अपना वाणी रिकॉर्डिंग में देके चले गए, यानी कि फिजिकली नहीं है, बट ही इज देयर इन हिज वाणी इवन नाउ। ही इज देयर, ऑलवेज ही इज देयर विद अस, लाइक कृष्णा ऑलवेज प्रेजेंट, ही इज आल्सो ऑलवेज देयर। थिंग इज, प्रभुपाद जी का जो उनका जो ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस देखिए, कितना कितना फोर्स, उनका जो फार विजन देखिए क्या है।
Nobody can match that, intelligence. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कोई भी उसका सामना भी नहीं कर सकता है। इतनी क्लैरिटी है ही नहीं प्रभु जी, कितनी क्लैरिटी नहीं है प्रभुपाद जी, एवरी वर्ड। अब इसी छोटे बुक को है ना, धीरे धीरे ध्यान से पढ़ेंगे ना, आपको इतने पॉइंट्स निकलेंगे। अरे प्रभुपाद जी इज ऑलरेडी रिटन एवरीथिंग। प्रभुपाद जी ने बोल दिया, आपको समझ में नहीं आया, आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, बार बार पढ़िए मेरा बुक्स को, सब कुछ मैंने लिख दिया है। प्रभुपाद हैज गिवन ऑल थिंग्स इन हिज बुक्स। जो बोलना है हमको सब कुछ अपने बुक्स में बोल दिया है। और आपको भी जब कंफ्यूजन होता है ना, भगवान आपको वही पॉइंट में लेके जाएंगे जो आपको कंफ्यूजन क्लियर करने का प्रभुपाद जी का एक ओ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया। परमात्मा आपको गाइड करेंगे उस बुक का, उस स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए। रूपा जी का लेक्चर नहीं है प्रभु जी नेक्टर ऑफ हाँ? इंस्ट्रक्शन पे, कहीं पे मैंने देखा यूट्यूब पे झांट के, लेकिन कहीं पे दिखा नहीं मुझे प्रभु जी कौन कोई भी से? लेक्चर उनका इस पे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पे। इसमें नहीं, लेक्चर नहीं है इसका। हाँ, लेक्चर नहीं है इसमें। हाँ लेक्चर नहीं जी, इसका, लेक्चर नहीं, इसका खाली बुक है। क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी ने इस बुक को लिखा था 1975 में, ठीक है ना। प्रेफेस में देखिए ना, 1975 में सितंबर 20, कि ये इंस्ट्रक्शंस थे। प्रभुपाद जी कोट कर रहे थे, हम लेक्चर्स में कोट कर रहे थे इसका अलग अलग श्लोका को। जी प्रभुपाद जी ने इसको एक फॉर्मली एक बुक के रूप में उसको देकर पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। इसी श्लोकों को प्रभुपाद जी बार बार अलग अलग तरीके में कोट करते हैं अपने पूरे टीचिंग्स में, अपना कमेंट्रीज में, अलग अलग बुक्स में, लेक्चर्स में बोलते हैं, एक एक कोट करके बोलते हैं। ये ऑलरेडी इनकी ये उपदेशामृता इज समथिंग वेरी बेसिक, एवरीबॉडी शुड नो, ये बात। चलिए, so we'll close here and next session we'll have 2 more verses. क्योंकि एक एक श्लोक का बहुत सारी चीजें समझने पड़ता है। ठीक है, एक और नेक्स्ट श्लोक का 2 वर्सेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फाइन, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। और सचिन जी, हरे कृष्णा महाराज जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।